Good morning, students. So today I will explain you about bonding in coordination compound. So first of all, I will explain you valence bond theory. So the important postulates of valence bond theory is the suitable number of atomic orbitals of central metal ion sp(d) hybridized to provide empty hybrid orbitals. Second postulate is these hybrid orbitals accept lone pair of electron from the ligands and are directed towards the ligand position according to the geometry of the complex. When inner d orbitals of used in hybridization, the complex is called inner orbital or spin hybridized complex. But a substance which do not contain any type of unpaired electron is not attracted by magnet, so it is said to be dimagnetic. On the other hand, the substance which contains one or more unpaired electrons in the d orbital is attracted by a magnetic field and it is said to be paramagnetic. Paramagnetism can be calculated by the expression μs is equals to under root n plus 2. This is known as spin only formulas. So here mu is equals to magnetic moment and s representing spin only value, and n is equals to number of unpaired electrons. For example, we can take n is equals to 1, so there the magnetic moment will be 1.73 bm. Bm is a unit for using for magnetic moment. Bm means Bohr magneton. Okay. On the basis of this value magnetic moment, we can predict the number of unpaired electron present in the complex. For example, if magnetic moment value is given 1.73 bm, so easily we can guess there is unpaired number of unpaired electron will be 1. Okay, so after the knowing how many unpaired of electron in a metal complex, then it is possible to predict the geometry of the complex. For example, if you know the number of unpaired electron, so you can easily guess the type of hybridization and its geometry also. Okay, now next postulates of VBT theory is there are two types of ligands, namely strong field and weak field ligands. A strong field ligand is capable of forcing the electrons of the metal atom ion or pair up if required. Pairing is done only to the extent which is required to cause the hybridization possible for the coordination number, while a weak field ligand is incapable of making the electrons of the metal atom ion to pair up. Some example of strong field ligands are Cn negative, CO, En, NH3, H2O, NO negative and Py pyridine. So these are the example of strong field ligands which is capable to forcing an electron of the metal atom ion to pair up if required. But weak field ligands, for example I negative, Br negative, Cl negative, F negative, OH negative, these are weak field ligands, so these are incapable of making the electrons of matter. Now I will take some examples and I will explain you more about the valence bond theory, and we apply these postulates also. Okay, so now see the example. Explaining the VBT theory, we are taking one example. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिससे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे. तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसे समझने के लिए हमने लिया है CONH3 3 पॉजिटिव. वैसे मैंने इसमें डाई मैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखा है, लेकिन हमें इस थ्योरी के एक्सप्लेनेशन से भी यही चीज़ें पता चलती हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है वो डाई मैग्नेटिक है, उसका क्या शेप है, वो पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, ये चीज़ पता चलती है. अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगी, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डाईमैग्नेटिक होगी. तो ये हमें उसके हाइब्रिडाइजेशन से भी पता चल जाएगा कि उसकी शेप क्या होगी. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लानर होगी. इसी तरह sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होगी, और d² sp3 में भी ऑक्टाहेड्रल होगी. तो ये सब हम देखेंगे इस एग्जांपल में. पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा शेप है. वैसे तो इसमें लिखा है ऑक्टाहेड्रल है, पर ये कैसे आया ये हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. तो हमने लिया है हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड आयन. तो इस नाम से पता चल रहा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप केंद्रीय धातु आयन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन
पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। तो हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 एंड 4s2। लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखा जाए तो यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की फॉर्म में है, यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। सो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। सो इसका हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है यहाँ पे, जिसे हमने अकॉर्डिंग टू हुंड रूल के हिसाब से ही फिल किया है। लेकिन अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले को देखें, केमिकल फॉर्मूला देखें, तो CO NH3 6 है, यानी कि यहाँ पे 6 NH3 आयन है। क्योंकि अगर हम ये जो NH3 होता है ये प्रबल लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो इसके वजह से इसके जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है, कोबाल्ट के कांटेक्ट में आता है, तो ये हुंड के नियम के विपरीत जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, यानी कि ये पेयर्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो अभी 2 यहाँ पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बाकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन NH3 की प्रेजेंट के होने से ये क्या हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, ये ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ NH3 ये पेयर्ड हो जाते हैं। और अब हमारे पास 6 जो ऑर्बिटल हैं वो एम्प्टी हैं, जो कि NH3 लिगेंड के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन द्वारा फिल होंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो सी हेयर, दिस रेड वन इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज़ गिवन बाय लिगेंड NH3 ने ये लिगेंड डोनेट किए हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय NH3 लिगेंड। सो अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। ओके, तो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल आर गिवन। सो D2sp3 अगर यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन है तो अकॉर्डिंग टू द टेबल जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, इसमें जो अगर आप इसमें देखो तो एक तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस इज़ कॉल्ड डाई मैग्नेटिक। ये क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है उपस्थित, तो यह चुंबकीय होगा। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि ये D2sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें तो इसमें इनर शेल जो है वो डी जो है इनर शेल वाला जो है वो यूज़ हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल इसमें यूज़ हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, और इसलिए इस ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें इनर डी शेल यूज़ होता है हाइब्रिडाइजेशन में, उन्हें बोला जाता है इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिनमें क्या होता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है इन हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये क्या होगा, एक ऑक्टाहेड्रल, इसका जो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो दिस इज़ द शेप ऑफ दिस CONH3 3 पॉजिटिव हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन का ये एक शेप है, जो कि है ऑक्टाहेड्रल। ओके, और इसे हम इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी हमने देखा था इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसे हम प्रतिचुंबकीय कहेंगे, अनुचुंबकीय नहीं कहेंगे। मैंने पहले अनुचुंबकीय बोल दिया था, वो गलत है। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय बोला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें बोला जाता है अनुचुंबकीय। हिंदी में जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें बोला जाता है अनुचुंबकीय। जिनके पास नहीं होते हैं, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन्हें हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय, यानी कि डाई मैग्नेटिक। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर के डी कक्ष को ने बंद बनाया है, इसके कारण इसे भीतरी कक्ष संकुल यौगिक यानी कि इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम है, इसलिए इसे निम्न चक्रण यौगिक कहते हैं। लो स्पिन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में इसे देख लीजिए एक बार और। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है, एक्सप्लेनेशन आप इजीली कर सकते हैं। और अब अगर आप 1 बाय 1 इसके पॉस्टुलेट्स भी देखेंगे तो आप इसमें देख रहे होंगे सारे अप्लाई हो रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है।
ये है आपका हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन।